See, molecularity, our textbook says the second important term in addition to the order of reaction. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलावा अगर दूसरी कोई जो इंपॉर्टेंट टर्म है देन इट इज मॉलिक्युलरिटी. ओके, तो मॉलिक्युलरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? फॉर एनी रिएक्शन, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट दिस. H2 plus I2 gives you 2HI. H2 plus I2 gives you 2HI. Can you tell me how many molecules of reactant are taking part in this reaction? 2 molecules, correct or not? Since 2 molecules are going to collide with each other and then they're going to form a product, that's why इसकी molecularity होती है. Correct. Then second one which we do have, for this reaction ammonium nitrate, if decomposition takes place, then we get nitrogen gas and NO2 gas. I'm sorry, nitrogen gas and 2 molecules of water. Can you tell me how many molecules of ammonium nitrate are taking part in the reaction? 1. So इस टाइम पे इसकी molecularity 1 बनेगी. According to our textbook, the number of atoms, ions or molecules of the reactant that take part in the reaction and which experience collision with each other, so that reaction result, it is called molecularity of the reaction. This is what it is known as molecularity of the reaction. बराबर. Now for an example, for NH4NO2 आपको N2 plus 2H2O मिल रहा है. It is known as monomolecular reaction. What do we call it? Monomolecular reaction. यहाँ पे 2 molecules combine होकर आपको H2 and I2 मिल रहा है. Then it's called bimolecular reaction. Okay. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NO और 1 मॉलिक्यूल O2 के कंबाइन होकर आपको 2 NO2 दे रहे, देन इट्स कॉल्ड ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. बराबर. इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3. वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, मॉलिक्युलरिटी इज द टर्म विच इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन. It can be defined, molecularity can be defined for an elementary reaction only. Elementary मतलब simple reaction के लिए ही molecularity आप use कर सकते हो, हर एक reaction के लिए नहीं कर सकते हो. Okay, there is no meaning of molecularity for complex reaction. The definition of molecularity for an elementary reaction we have already seen. And अगर आपके पास elementary reaction है, then elementary reaction का molecularity and order almost same होता है. Hence the order of reaction and for bimolecular, trimolecular and elementary reaction, for elementary reaction are same. Elementary reaction के लिए order and molecularity दोनों चीज क्या होगी? Equal होगी. For an example, ये जो reaction है इसकी molecularity भी 2 है और उसका ऑर्डर भी क्या है? 2 है. उसका ऑर्डर भी 2 है एंड मॉलिक्युलरिटी भी 2 है. ओके, thus the order of reaction and the molecularity are same, that is 2. Is this fine? समझ में आ रहा है आपको यहां तक? Molecularity is very simple term. Now for an example, अभी हमारे पास एक रिएक्शन यहां पे दिया गया है. KClO3 6FeSO4 3H2SO4 gives you KCl पर 3Fe2SO4 thrice plus 3H2O. इसके लिए अगर हम मॉलिक्युलरिटी फाइंड करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी 1 + 3 कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए. ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं यहां पे आना चाहिए. मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी 10. The molecularity of the following reaction will be 10. इसके molecularity कितनी है आपके पास? 10 है.
नाउ बट इसका ऑर्डर 10 नहीं होगा. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर हमेशा इक्वल नहीं होता है, वो अलग अलग होता है. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट सेम. ओके, इसका इनफैक्ट इसका ऑर्डर 2 है, 2 है. वाई इट्स ऑर्डर इज 2? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप. ये ये कितने स्टेप्स में होगा? एक से ज्यादा स्टेप में, इसीलिए तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एंड जब एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होता है, देन जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, कौन सा स्टेप? स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, दैट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. वी हैव सीन अबाउट दिस इन लास्ट सेमेस्टर में बताया था आपको. अगर एक से ज्यादा कोई स्टेप में रिएक्शन होता है, देन स्लोअर स्टेप डिटरमाइंस द rate of reaction. And since the reason for this, that this reaction is occurring in more than one steps, and the slowest step in the reaction determines the order of reaction, so it becomes rate determining step. और इसका जो rate determining step था, उसका order 2 था. That's why ये complex reaction का order कितना मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है. और एक एग्जाम्पल देखेंगे. यहां पे H2O2 का डीकम्पोजिशन हो रहा है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेटिंग डीकम्पोज इन वाटर एज वेल एज इन ऑक्सीजन. H2O2 गेटिंग डीकम्पोज इन वाटर एंड ऑक्सीजन. वहां पे पता किया उन्होंने, तो पता चला है कि ये आयोडीन की प्रेजेंस में हो रहा है. एंड दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेप, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. स्टेप 1 में होता क्या है? H2O2 I माइनस के साथ रिएक्ट करता है एंड H2O and IO माइनस दे रहा है. एंड इन स्टेप 2 H2O2 प्लस IO माइनस आपको मिलेगा H2O प्लस I माइनस प्लस O2. देखो स्टेप 1 में इसमें आप एक चीज आपने नोटिस की, यहां पे I माइनस जो है इट इज कैटलिस्ट, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल H2O2 के रिएक्ट कर रहे हैं और आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड O2 मिलना चाहिए. ये फाइनल रिएक्शन है. इसमें आयोडीन यूज नहीं होता. It is taking part in the reaction, but it is okay unused. After the reaction, you are getting it back. After the reaction, you are getting it back. Okay. यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल H2O2 का यूज हुआ, यहाँ पे दूसरा यूज हुआ. But one more important thing, have you noticed this? IO माइनस जो था वो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? यूज हो जाता है. तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन यू विल नॉट गेट इट. फर्स्ट स्टेप में इट इज ए प्रोडक्ट एंड सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? उसका यूज हो रहा है. ऐसी चीज जो एक स्टेप में प्रोड्यूस होती है एंड दूसरे स्टेप में यूज हो जाती है, उसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. बराबर है कि नहीं? ये आपको समझ में आ रहा है? बाय द वे जो आयो माइनस था, इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप. हमारा इंटरमीडिएट कहां पे प्रोड्यूस हो रहा था? फर्स्ट स्टेप में. एंड इंसिडेंटली इट वाज स्लोवेस्ट स्टेप. मतलब कौन सा था वो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था. फर्स्ट स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. एंड सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग नहीं है. सो दो आयो माइनस एक्चुअली मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, फिर भी आयो माइनस का प्रोडक्शन वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेट एंड उसके ऊपर से हमको क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है. देखिए आप ये पार्ट, both the steps are bimolecular elementary reaction. IO minus is called intermediate. It is formed during the reaction, but it is not found in overall reaction. Form होता लेकिन मिलता नहीं after the reaction. First step is slow, hence it is rate determining step. Hence the formation of intermediate IO minus decides the rate of reaction. मतलब जो formation of IO minus है वो क्या डिसाइड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन. बराबर है कि नहीं? आपको इसके पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, यू मे राइट क्वेश्चन इन योर बुक. आपके पास अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेज मैंने डलवाया और रखा हुआ है तो. ओके, इन डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2
in presence of I minus. IO minus is not found in overall reaction. Still, formation of IO minus is important. Explain. तो उसका आंसर यहां से चालू होता है वहां तक. ओके आपने लिखा ये. ओके विल कंटिन्यू फर्दर. वन मोर पॉइंट. जो लास्ट 3 लाइन है वो आपको कंक्लूजन देती है. इट गिव्स यू द कंपैरिजन बिटवीन molecularity and order of reaction. It gives you comparison between molecularity and order of reaction. See over here, order of reaction is an experimental quantity. मैं आपको पहले ही बताया. It can be determined by only experiment. It can be zero order or even fraction, while molecularity of a reaction cannot be zero or fraction. Okay, order of reaction always is, order of reaction is experimental. It can be 0, it can be 1, it can be fraction. Molecularity can never be 0 or fraction. Why molecularity cannot be 0 or fraction? Because कोई भी रिएक्शन होगा तो एटलीस्ट मॉलिक्यूल कंबाइन तो होंगे. वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होंगे. 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल. कभी ऐसा हो कि 0 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0. कभी 1.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं होता है. कभी 1.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं होता है. बराबर है कि नहीं? सेकेंड थिंग, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी अप्लाइड टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस किस के लिए है? एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए है. वाइल मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्युलरिटी है. मॉलिक्युलरिटी किसके लिए है? खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के. मैंने अभी आपको बताया. एंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप शोज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड जनरली मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर आप स्लोएस्ट स्टेप लेके आते हो तो उसकी मॉलिक्युलरिटी जो होगी वही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा.